welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are back with the next lecture, that is the lecture number 11 from our third unit, which is magnetic effects of current and magnetism. And the topic we are going to start today is magnetic force acting on a current carrying conductor placed in external magnetic field. सो स्टूडेंट्स, तो हम एक ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालने वाले हैं जो कंडक्टर एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. ओके, so suppose we are having a current carrying conductor and the conductor is straight. Okay, straight conductor. मेरे पास एक current carrying conductor है like this. This is a current carrying conductor. And suppose the length of the conductor is L. And it is placed along x-axis. x-axis के along ये रखा हुआ है. ये x-axis का positive direction. Okay. And also the current flowing through it is along the positive direction of x-axis. इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही है. I, the current flowing through it is along the positive direction of x axis. Okay, if this is y axis, मान लो ये हमारी y axis है, तो ये origin होगा O. Now the external magnetic field, suppose it is in xy plane. ये y axis है ना, y axis का positive direction. Suppose the external magnetic field is in xy plane and it makes an angle. This is uniform magnetic field in this direction. Okay, and it makes an angle theta with the positive direction of the x-axis. It makes an angle theta with the positive direction of the x-axis. Okay. So students, now we have to find out what is the force acting on this current carrying conductor placed in external and uniform magnetic field. Okay, कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर. इसको करने के लिए we will make use of magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force क्या बताता है हमको कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स F is equals to Q V cross B होता है for positive charges, and if the charge is negative then the direction of the force gets reversed and the formula in vector form becomes F is equals to negative of Q V cross B. Okay, अब यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है क्या? Yes, of course. If current is flowing through this conductor, it means free electrons are moving opposite to the direction of the current. याद करो current electricity को. It means if current is moving through the conductor, it means free electrons are moving opposite to the direction of the current and they are moving with the speed which is known as drift velocity. Okay, याद आया ना आपको? So जो ढेर सारे free electrons यहाँ पर move कर रहे होंगे opposite to the direction of the current, उनमें से हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर बनाएंगे and let that electron is at the origin. मान लो वो इलेक्ट्रॉन ओरिजिन पर है और ये इलेक्ट्रॉन अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर जा रहा है, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर जा रहा है. ओके, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे. अभी मैंने सिर्फ एक ही बनाया. वी आर इंटरेस्टेड What is happening on one free electron? जो एक free electron के साथ हो रहा है वही सबके साथ हो रहा होगा. Okay. So we have considered a straight current carrying conductor placed along x-axis having length L and the direction of the current in it is along the positive direction of the x-axis. Okay.
for the current to flow through this wire, yeah, through this conductor. Then we can find out a relationship for the force acting on the charged particle moving inside the magnetic field, and that charged particle is electron. That charged particle is electron. Okay, and remember that the magnetic field in this space is in xy plane, and it is having an angle theta in the direction of the positive x-axis. या आप ये भी कह सकते हो the angle between the direction of current and the direction of magnetic field is theta. Okay, so under these conditions हम लिखने वाले हैं सबसे पहले magnetic Lorentz force acting on the free electron. Okay, suppose that force is Fe, force on one electron. Fe is the force on one electron. Now the charge on the electron is E and the electron is negative. So I am writing the formula, and I am writing the formula in vector form. Vd is the velocity and B is the magnetic field. Any charge moving inside the magnetic field B with speed v, the force acting on it is given by F is equals to Q V cross B, and the charge is negative, the direction of the force gets reversed, so the formula becomes negative of E V cross B. V is Vd over A. Okay, ये हमारे एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है जो लग रही है. सपोज इस कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज मूव कर रहा है ड्यू टू वेरियस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वो टोटल चार्ज Q है. इफ द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t is Q, so we can say total magnetic Lorentz force acting is given as, टोटल के लिए मैं सिंबल यूज करूंगा F, टोटल चार्ज Q और सभी चार्ज पार्टिकल्स Vd से जा रहे हैं, B magnetic field. Okay, this is the total force acting on all the free electrons. सारे free electrons की force हमने समाप्त कर लिया यहाँ पर. Now what is the direction of the force acting on the free electrons? Free electrons पर लगने वाली force का direction क्या होगा, ये हमें यहाँ पर देखना है. The direction of the force is given by writing the rule. Okay, V cross B करना है. V से B की तरफ उंगलियां घुमाएंगे. V इधर है, B इधर है, तो V क्रॉस B, देखो ध्यान से देखोगे अगर आप, V इधर है Vd और B इधर है, तो I am doing V cross B. V cross B, thumb in the direction perpendicularly inward to the plane of the paper, the plane of the board. Okay, so thumb perpendicularly inward to the plane of the paper. This is for positive charge, but the charge we are having is negative, which is electron. So the direction of the force for negative charge gets reversed. मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज की फोर्स आ रही है परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो नेगेटिव चार्ज की फोर्स का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन यहां पर होगा अलोंग द z एक्सिस. इफ दिस इज x, this is y, then this is the positive direction of z axis, and this can be drawn on my two-dimensional paper like this. This is the direction of z axis positive और ये z axis negative. Okay, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लग रही है तो सभी पे इधर लगेगी, तो I have marked total force over here. ठीक, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स में जो टोटल फोर्स आउटवर्ड लग रही है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, मतलब अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन, तो इट मींस ये फोर्स इस कंडक्टर पे आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, एंड ड्यू टू दिस फोर्स, इफ दिस
कंडक्टर इज प्लेस्ड फ्रीली, अगर ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है या किसी फोर्स ने इसको नहीं रोका हुआ है तो ये कंडक्टर प्लस z डायरेक्शन में आगे आ जाएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। ओके, ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ऐसे आगे आ जाएगा ये कंडक्टर लाइक दिस। ओके, अब हम यहां पर आगे क्या कर सकते हैं ना, आई वांट टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट। मैं करंट के टर्म्स में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो करंट के टर्म्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे इन प्लेस ऑफ q आई कैन राइट q इज इक्वल्स टू it। याद है ना करंट की डेफिनेशन, करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो q को मैं लिख सकता हूं it। ओके, q इज इक्वल्स टू it, तो यहां पर हम q इज इक्वल्स टू it रिप्लेस करेंगे, f इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस कॉपी कर लिया, q की जगह पर it और ब्रैकेट में लिखा हुआ है vd क्रॉस b। नाउ t को मैं vd के साथ लिखने वाला हूं, f इज इक्वल्स टू नेगेटिव i, t को vd के साथ लिख लिया है क्रॉस b। नाउ t इज टाइम, v इज वेलोसिटी, टाइम इनटू वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है देखो, t टाइम में vt स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स इस लेंथ को कवर कर रहे हैं t टाइम में, ठीक है, ये तो बता था हमने, द चार्ज फ्लोइंग q थ्रू द कंडक्टर इज इन टाइम t। ओके, सो t टाइम में vt स्पीड से ये चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर की लेंथ को पूरा कर लेते हैं, तो इट मींस t into vt, टाइम into स्पीड इज दिस लेंथ ओनली l। और क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इसको कंप्लीट करते हैं तो वेक्टर्स में आप लिखोगे माइनस l, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ l, नेगेटिव ऑफ l, सो t into vd इज नेगेटिव ऑफ l। वेक्टर्स में चल रहा है सब कुछ नेगेटिव ऑफ l। नाउ व्हाट इज दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव, सो फार्मूला बिकम्स f is equals to I L cross B। Now what is L over here? L is the length of the conductor, B is the magnetic field in which it has been placed, and I is the current flowing through the conductor। Okay, this is the vector formula। और इस फॉर्मूले को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, magnitude of force acting on this conductor of length L can be written as magnitude, देखो L cross B can be written as LB sin theta, A cross B को AB sin theta बोलते हैं ना, तो L cross B can be written as LB sin theta। सो मैं यहां पर फोर्स F का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं I L B sin theta। तो व्हाट इज द एंगल थीटा, एंगल थीटा क्या है यहां पर, एंगल थीटा देखो डायग्राम में मार्क किया हुआ था हमने, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ओके, वैसे तो यहां पर L एंड B के बीच का एंगल होना है, इट मींस हमने लेंथ के डायरेक्शन को किस डायरेक्शन में माना है, लेंथ का डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन दिस, लेंथ का डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। याद रखिएगा लेंथ का डायरेक्शन, लेंथ इज वेक्टर ना, तो लेंथ का डायरेक्शन कौन सा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो लेंथ का डायरेक्शन माना जाएगा यहां पर। ओके, पॉइंट को नोट कर लो। So this is the magnitude of the force, okay, acting on a current carrying wire which is placed in magnetic field B such that theta is the angle between the direction of the flow of current and the direction of magnetic field। okay, याद रखिएगा इस चीज को। and now in this case also आप देख सकते हो this force is perpendicular to the length of the conductor as well as perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि L क्रॉस B है ना, L क्रॉस B का जो भी रिजल्ट आएगा वो L एंड B दोनों से परपेंडिकुलर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सो L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर से भी फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, एंड B मींस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से भी फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर, याद रखिएगा। ओके, जहां जहां भी वेक्टर प्रोडक्ट आता है याद रखो हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट उन दोनों वेक्टर्स से परपेंडिकुलर होता है जिनको आपने क्रॉस प्रोडक्ट में डाला हुआ है, रिमेंबर दिस। ओके,
सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आप कॉपी करें एंड देन वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. So students, what we have learned in this topic is कि फोर्स का वेक्टर फॉर्मूला किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है I L क्रॉस B होता है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड I L B sin थीटा होता है. बहुत सी बुक्स में आपको ये फॉर्मूला BIL की फॉर्म में लिखा मिलेगा. BIL sin थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है. BIL बिल इस तरह से स्टूडेंट्स को जल्दी याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. आप IL की sin थीटा लिखो या BIL sin थीटा लिखो, लेकिन वेक्टर फॉर्मूला में L क्रॉस B को B क्रॉस L मत कर देना बस, बिकॉज़ L क्रॉस B का डायरेक्शन और B क्रॉस L का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट रहेगा. तो वेक्टर्स में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकते. ओके, now what will be the maximum value of this force? और कब होगी maximum? Special case maximum force very easy to find out. कैसे? अरे थीटा पे डिपेंड करती है ना sin थीटा पे. जब sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो when theta is equal to 90 degree, it means theta is the angle between direction of magnitude and direction of current. It means when B is perpendicular to the direction of current, in this case force is maximum. Okay, in this case force is maximum. ये तो कंडीशन हो गया. और मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू का क्या हो जाएगा? BIL sin 90. दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फोर्स. तो अगर आपको किसी कंडक्टर पे फोर्स मैक्सिमम लगानी है तो आपको क्या करना चाहिए? जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो है वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होना चाहिए. फोर्स उस कंडक्टर पर मैक्सिमम हो जाएगी. ओके, एक चीज और आप यहां से देखेंगे बेटा, देखो IL इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज दिस IL? इफ यू रिमेंबर इट फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ से याद करो क्या होता है. IDL करंट एलिमेंट. तो IL को आप क्या बोलेंगे यहां पर? करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, इफ दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल तो करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. So if current element gets multiplied with the magnetic field in which it is being placed, then it will give you the force acting on the current carrying conductor. Okay, और क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना होगा. ये भी याद रखो, डॉट प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना होगा. नेक्स्ट इज मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, force per unit length on this conductor. So I can divide by the length of this conductor. Force per unit length के लिए force तो ये है, divide by the length. I L cross B को L से डिवाइड कर दिया. वेक्टर L divided by its own magnitude. क्या बचेगा यहाँ पर? Unit vector along this direction. Unit vector along this direction. L vector जो भी है इस डायरेक्शन में L कैप, ये L by L, वेक्टर L by the magnitude of L. So this is small f, force per unit length, and this can be written as I L cap cross B, where L cap is a unit vector along the direction of current. L cap is a unit vector along the direction of current. नोट कर लो इसके नीचे, L cap is the unit vector along the direction of current. Okay, this gives the force per unit length. ये पॉइंट्स भी आप कॉपी करना है इसमें. ओके, दिस वन स्पेशल केस एंड दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ. और यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं आप? करंट एलिमेंट बोल सकते हैं. अगर आप इसको रिलेट करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ से आपको याद आ जाएगा. ओके, करंट एलिमेंट बोल सकते हैं इसको आप, IL को.
एंड नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम भी 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ओके, देखो x y z तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट थी यहां पर। इस डायग्राम का एक बार मैं आपको एक सिंपल सा 3 डायमेंशनल सेटअप भी कर देता हूं, सो दैट आपको आसान हो जाए ये फोर्सेस के डायरेक्शन यहां पर किस तरह लग रहे हैं ये समझना। ठीक है, इसको आप ऐसा समझो कि एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले। दिस इज एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसका एंगल थीटा है फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, सपोज यहां पर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो करंट ले जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, करंट लेकर जा रहा है अपने अंदर, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो ना कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंगल थीटा है, ये भी हम बोल सकते हैं। थीटा अगर ये तो ये भी थीटा होगा। ओके, अभी इसका थ्री डायमेंशनल सेटअप कैसा दिखेगा? देखो, इसको आप ऐसा मान सकते हो, सपोज आई एम हैविंग अ कंडक्टर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर हमारा कंडक्टर रखा हुआ है लाइक दिस। ओके, दिस इज द कंडक्टर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एक्स वाई प्लेन में है ना, ठीक? तो जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा? जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो कर रहा है इस साइड पर, उस साइड पर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कैसे निकाल रहे हो? v क्रॉस b। v इधर है, v इधर है, v क्रॉस b, ये तो पॉजिटिव का हो गया ना डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जाता है, तो फोर्स लगेगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फोर्स लगती है तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो सभी के ऊपर फोर्स इधर लग रही होगी। उन सबको हमने समअप करा और समअप करने के बाद हमें फाइनल फार्मूला मिला F = I L क्रॉस P। और सभी इलेक्ट्रॉन्स पे क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लग रही है, तो इट मींस इस कंडक्टर पे फोर्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लग रही है और उस फोर्स के इफेक्ट से ये कंडक्टर इस तरह से आगे की तरफ मूव कर जाएगा लाइक दिस। ठीक है, आगे की तरफ मूव कर जाएगा लाइक दिस। ठीक, अगर इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर हमारे रूम में एक्स वाई प्लेन में इस तरह से सच दैट कि वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन से एंगल थीटा पे है। सो इन सभी कंडीशंस में फोर्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस, और उस फोर्स से कंडक्टर ऐसे मूव कर जाएगा लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका थ्री डायमेंशनल सेटअप है। सो अगर ये फोर्स इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड से और करंट के डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर ही लगती है, तो इट मींस हम इस फोर्स के डायरेक्शन को परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे लगा सकते हैं, ये आप मेरे को सोचकर बताएं। परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, देखो, आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर हॉरिजॉन्टल कर दोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करके देखो, सपोज अभी इस सब को भूल जाओ जो डायग्राम बोर्ड पर है, अब यहां थ्री डायमेंशनल स्पेस में आ गए हम उसको लेकर। ठीक है, दिस इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस। मैं पीछे बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूं। नाउ सपोज दिस इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है आपकी साइड पर टुवर्ड्स यू लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है लेकिन टुवर्ड्स यू। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस towards positive direction of x axis like this. Okay, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अब L क्रॉस B करना है, F = I L क्रॉस B फॉर्मूला है ना, L क्रॉस B, तो L क्रॉस B, L का डायरेक्शन क्या लेते हैं? करंट का डायरेक्शन। L क्रॉस B करा तो मैग्नेटिक फील्ड गया, सॉरी L क्रॉस B किया तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे गया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो जाए, तो अगर मैं चाहता हूं कि फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो L क्रॉस B में से या तो L का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दो। किसी भी एक चीज का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। और आपने दोनों का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्ट कर दिया और करंट टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस कर दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही रहेगा जिधर था। ठीक है, तो कोई भी एक चीज रिवर्स करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करते हैं हम यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिवर्स किया, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स किया मतलब अवे फ्रॉम यू, हॉरिजॉन्टल तो है बट अवे फ्रॉम यू लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। करंट गोइंग पॉजिटिव x एक्सिस। नाउ L क्रॉस B, L करंट का डायरेक्शन है, क्रॉस B, B इधर है, तो L क्रॉस B फिंगर्स राइट हैंड की ऐसे कर लूंगी, फोर्स लग गई ऊपर अपवर्ड, इस केस में फोर्स ऊपर लग गई। अब अगर फोर्स ऊपर लग जाएगी
ऐसा कंडीशन भी तो हो सकता है जो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लग रही है वो इस वायर के वेट को बैलेंस कर ले। वेट क्या है इसका? mg डाउनवर्ड। अगर उस फोर्स ने इस वायर के वेट को बैलेंस कर लिया तो ये वायर आ जाएगा वेटलेसनेस की कंडीशन में। मींस ये फ्रीली सस्पेंड हो जाएगा इन एयर में या वैक्यूम में फ्रीली सस्पेंड हो जाएगा। mg वेट का इफेक्ट इसके ऊपर नलिफाई हो जाएगा ड्यू टू द vertically upward acting magnetic force which is given by the formula ILB sin 90 होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फोर्स का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका एट एन एंगल 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट है, ठीक। सो इस कंडीशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं जिसमें एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स फील करता है और वो फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर देती है। तो याद रखना ऐसे केस में वो मैग्नेटिक फील्ड ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ओके। और इस केस को अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो मैथमेटिकली इजी है समझना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वायर का जो भी वेट है वो किसने बैलेंस किया? ILB sin थीटा ने। अब थीटा 90 है तो 90 लिख लेना, मेरे केस में तो 90 आ रहा है, sin 90 ने बैलेंस किया। तो आई कैन राइट ILB sin 90 is equals to mg। इस इक्वेशन में कोई एक चीज अननोन होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, ओके, वही कैलकुलेट करनी होगी बस। सो इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल आता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, न्यूमेरिकल आएगा तो आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ओके। सो बेटा ये कॉन्सेप्ट भी आप कॉपी कर लें। So students, with this we have completed our class today। और आज की क्लास का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्यों ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अब जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो इस टॉपिक पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, और वो दोनों टॉपिक्स आपके समझ में नहीं आएंगे अगर आपने आज की क्लास स्किप कर दी। सो स्टूडेंट्स, माय एडवाइस टू यू इज कि इस क्लास को आप सीरियसली लें। अगर आपने एक बार अच्छे से वॉच नहीं किया, एक बार और आप इस क्लास को देखें, ठीक है। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। विश टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।